So we are doing revision of maths and we have completed 3 chapters of essay 1. Revision we have completed of chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 5. चलो, so chapter number 2 was chapter number 3 okay, and today we are going to learn chapter number 9. शाउट करने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता है कि 9 नंबर का चैप्टर क्या है. चलो, रूल नंबर 10 कौन है? पढ़ो फर्स्ट वन सेंटेंस. We have seen that data is a collection of numbers created to give some information. Gathered to give some information. We have learned, we have seen that data is a collection of numbers and gathered to get some information. Means we can say that data is a raw material and information is the exact detail of the particular thing, or we can say that area. Okay, suppose for example, after examination teachers will gather your obtained marks of all the subjects, okay, and you people are getting the percentage in the report card. Okay, so we can get the idea कि how many students are of which range. Suppose मैं मैथ्स की बात करूँ तो we are going to take your 60 marks examination. ठीक है, अगर मुझे ढूंढना है कि कितने बच्चे जो है उसको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले, तो पहले तो मेरे पास पूरे बच्चों की मैथ्स की मार्क्स होंगे, उसमें से मुझे ढूंढना है, तो अलग करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, देन बिटवीन 10 to 20, बिटवीन 20 to 30, between 30 to 40, between 40 to 50, and between 50 to 60. According to that, we can arrange the data. So the obtained marks of all the students, which is called data, and information क्या होगी? जो भी मुझे मैं उसको गैदर करूँगी और अरेंज करूँगी in the proper manner. गैदर करके फिर क्या करेंगे? हम उसको अरेंज करेंगे with the proper manner, whatever the requirement. प्रॉपर मैनर मीन्स अगर 10 से भी कम मार्क्स जिन बच्चों के आते हैं उन पे टीचर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा टीचर को समझना पड़ेगा. और द स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग मोर देन 50, बिटवीन 50 to 60 आर डूइंग नाइसली. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एवरेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड्स हार्ड वर्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्सेलेंट. These all things we can get by arranging it in proper manner, और that is called information. जो डेटा है वो रो मटेरियल है और इंफॉर्मेशन जो है वो फिनिश्ड मटेरियल है. चलो नेक्स्ट, नंबर 20, रोल नंबर 20. Get a particular information from the given data quickly. The data can be arranged in a tabular form using tally marks. So tally marks तो क्लियर हो सब? Yes. So how to manage the tally marks? और ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया that also will be managed with the tally marks. और tally marks से क्या होगा कि मैं रोल नंबर 1 का सपोज मार्क्स लूँ कि उससे मैं रेंज बनाऊँ कि 10 to 20, 20 to 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 to 60. मैंने इतने मार्क्स की रेंज बनाई. फिर मैं जितने भी 40 स्टूडेंट से समझो तो मैं टेली मार्क बना के चलूँ. जैसे रोल नंबर 1 में देखूँ तो यहाँ पे आ गया, रोल नंबर 2 यहाँ पे आ गया, रोल नंबर 3 यहाँ आ गया,
4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। इस तरह से मैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे टैली मार्क्स बनाती चलूंगी, जितने 40 स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स से जितने हैं उसकी। और उसमें से जो भी डेटा हमें मिलता है कि यहाँ मुझे 5 मिले, यहाँ मुझे 10 मिले, यहाँ मुझे 5 ही मिले, यहाँ 2 ही मिले, गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड टैली मार्क्स एंड यू पीपल आर डूइंग दिस टैली मार्क वर्क फ्रॉम स्टैंडर्ड 3rd। सो आप लोग है ना इससे हैबिचुएट हो। क्लियर हो सब? चलो नेक्स्ट नंबर 30। रोल नंबर 30 कौन है आपको कि वो है ना? चलो। We learn how a pictogram represents data in the form of picture object or parts of object. We have also seen how to interpret a pictograph and answer the related questions. We have drawn pictograph using symbol to represent a certain number of items or things. For example, 100 books. For example, one picture is equal to 100 books. तो पिक्टोग्राफ की बात है यहाँ पे। So how to draw pictograph and how to interpret pictograph. If you have completed all the examples of this which I have given yesterday, so you people are totally clear about, है ना? How to draw pictograph and how to interpret the pictograph. मैम अगर एग्जाम में कुछ पिक्टोग्राफ जो नहीं ड्रॉ कर पाए तो कोई अलग सिंबल ले सकते हैं? सिंबल ही ऐसा आएगा कि आप ड्रॉ कर पाओ। मैं आप लोगों को जानती हूँ ना, आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ आप लोगों को, बराबर है? तो सिंबल ही ऐसा होगा कि आप ड्रॉ कर पाओ, तो फिर तो इश्यू ही नहीं है। क्या करना है? तो क्राफ्ट पेपर लेके क्राफ्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है? चलो, तो ये पिक्टोग्राफ मीन्स व्हाट? जैसे आप ये टैली मार्क्स बनाते हो, तो टैली मार्क्स से भी कई बार अगर जो रेंज ऑफ द डेटा इज बिग, बहुत बड़ी रेंज है, मानी कि आप अगर सयाजी लाइब्रेरी में जाओ तो उनके पास लैक्स ऑफ बुक्स आर देयर। ओके, यहाँ पे जो नवसारी में है सयाजी वैभव लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आप जाओ तो बहुत सारी बुक्स है। अभी उनको मैनेज करनी है कि हाउ मेनी बुक्स दे हैव और विच टाइप ऑफ बुक्स दे हैव। सपोज ऑटोबायोग्राफी कितनी है, फिर कॉमिक बुक्स कितनी है, नॉवेल्स कितनी है, स्टोरी बुक्स कितनी है, एजुकेशन बुक्स कितनी है। अगर इस तरह से उनको जब कलेक्शन करना होता है और उनको एक मैनर में बुक्स अरेंज करनी होती है, क्योंकि जब कोई रीडर लाइब्रेरी में जाता है तो उसे इजीली बुक अवेलेबल होनी चाहिए। कोई पूछता है कि मुझे ये राइटर की बुक चाहिए, ये ऑथर की बुक चाहिए, तो दे कैन इंडिकेट दैट, दे कैन शो दैट कि यू गेट दिस बुक्स इन दिस कबर्ड। ओके, सो हाउ टू अरेंज इट? तो वो अरेंज करने के लिए उनके पास ये डेटा होने चाहिए कि हमारे पास कौन से टाइप की कितनी बुक्स है। तो वो अरेंज करने के लिए अगर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हो वहाँ पे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो क्वांटिटी के लिए एक सिंबल लेना पड़ेगा, जो कि एग्जाम्पल आपके अभी इस स्टेप में दिया है कि एक बुक का शेप ले ले और एक बुक का शेप 100 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उनको समझो कि 1000 बुक्स रिप्रेजेंट करनी है, तो ये टैली मार्क बनाएंगे तो कब बनाते चलेंगे? 1000, है ना? तो इट इज अ लेंथी वर्क और टाइम कंज्यूमिंग वर्क। तो टाइम बचाना है, कम समय में ज्यादा काम करना है, तो पिक्टोग्राफ उनको यूजफुल होता है। और हाउ टू रिप्रेजेंट द पिक्टोग्राफ, you are totally clear about it, and interpretation of the pictograph, that is also clear. Okay, चलो नेक्स्ट 40 रोल नंबर है क्या क्लास में? नहीं है, तो 11 नंबर 11। We have discussed how represent data by using the bar diagram or bar graph. In bar graph, bars of uniform width are drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. The length of each bar gives the required information. Okay, so how to draw bar graph, that also practiced yesterday, है ना? And how to interpret a bar graph. बार ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, उस पे से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हाउ टू आंसर इट,
That is also you have experienced yesterday whenever you solve these examples. So बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2-3 बातें हमको याद रखनी है. क्या? एक तो you people have to arrange the scale according to the height and width of the page. है ना? Scale of the bar graph is very very important. मैंने जब आपकी नोटबुक या ग्राफ बुक चेक की, आपकी क्लास की शायद ग्राफ बुक चेक करनी बाकी ही है, नहीं दी है मुझे किसी ने भी, 6-7 में हो गया है. तो वो बार ग्राफ कभी कभी किसी बच्चे ने ड्रॉ की है, तो सपोज के समझो कि ये पूरा पेपर है आपका, तो किसी ने इतने में ही ड्रॉ किया है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि स्केल जो है वो आपको कैसे लेना है, पूरे पेज को कवर कर सको इस तरह से लेना है. फिर यहाँ पे भी पूरा पेज कवर हो सके इस तरह से लेना है. आप ऐसा करोगे कि छोटे छोटे बार इस तरह से ड्रॉ करोगे तो इतना ही पेज आपका यूज होगा, बाकी का वेस्ट जाएगा. ठीक है, तो ऑलवेज व्हेनेवर यू डिसाइड द स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द रेंज ऑफ द डेटा कि मिनिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है. फिर आपके पास पेज पे कितनी स्पेस है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू पीपल हैव टू डिसाइड द स्केल ऑफ द ग्राफ, बार ग्राफ. हॉरिजॉन्टली आल्सो मींस एक्स एक्सिस आल्सो एंड वाई एक्सिस आल्सो. तो वो बात यहाँ पे बताई गई है. और दूसरी बात कि जब बार ग्राफ ड्रॉ करते हो तो बार्स की जो विड्थ होती है वो हर एक बार की सेम होनी चाहिए. कोई एक बार छोटा हो गया, कोई एक बार इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं चलता है. The width or thickness of the bar must be similar in one bar graph. एक बार ग्राफ में आप जब ड्रॉ करते हो तब बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए. फिर अगर दूसरा बार आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हो वहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हो. ठीक है, चलो क्लियर हो? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? चलो नेक्स्ट इज 21 रोल नंबर. Doing this, we also discussed the process of choosing scale and graph. For example, 1 unit is equal to 100 students. We have prepared reading and give bar graph. We have seen a interpretation for the same can be made. Okay, so to do this, we also discussed the process of choosing a scale for the graph. जो मैंने अभी आपको बताया कि स्केल कैसे चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट. दिस इज द एग्जाम्पल. वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड रीडिंग अ गिवन बार ग्राफ एंड वी हैव सीन हाउ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द सेम कैन बी मेड. मानी अगर कोई डेटा दिया है और उसका अगर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट ऑल्सो हाउ टू ड्रॉ इट, दैट यू नो. एंड अगर एक बार ग्राफ ड्रॉ करके ही दिया है और उसके ऊपर से इक्वेशंस दिए हैं तो दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन. तो वो इंटरप्रिट करना होता है, तो वो भी कैसे करना है दैट वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड. ओके, एंड स्केल कैसे लेना है वो भी बात है. तो ये सब आपको क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है? चलो तो लेट स्टार्ट चैप्टर 10. चैप्टर 10 का जो आपका कौन से पेज पे है? 220. चलो ओपन दैट पेज एंड चैप्टर 10 इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का मीनिंग क्या है? बोलते चलो, जो भी दिमाग में है बोल देने का, उसमें क्या है ना. लेकिन गॉड इज वेरी क्लेवर. तो भगवान ने क्या किया, जब जीभ आप जितनी भी यूज करोगे एक बार उसमें से जो बाहर निकल गया वो वापस अंदर नहीं आएगा. तो whenever you use your tongue be careful. अगर जो इसकी अच्छी तरह से यूज नहीं करता ना तो वो है ना भगवान उससे ले लेते हैं. और आपको पता है कैसे स्टूडेंट्स है वो, मैंने आपको शायद आपका ग्रुप तो गया भी होगा देखने के लिए, है ना. जो एक यहाँ पे मैंने कहाँ भेजा था आप लोगों को? गुरुद्वारा नहीं, ये हमारे एक स्कूल है ना यहाँ पे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते.
वहाँ पे आपके ग्रुप को तो मैंने भेजा ही है, लेकिन आप लोग भूल गए ये 1.5 साल के आराम करने के मूड नहीं ले गए। तो अभी तो उनकी स्कूल बंद है, जब शुरू होगी तो आई टेक यू ओवर दैट. You will get the idea. The students, those who can't speak a single word, who can't listen anything, who can't see anything, how they are working over there without these organs also. So how struggling life they have. कि जो बोल नहीं सकता तो कितना सफोकेशन होता होगा आपको. तो 10 मिनट तक मैं चुप रखूंगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. तो भी वो बच्चे क्या करते हो, तो क्यों वो भगवान ले लेते हैं, क्योंकि हम उसको स्मार्टली यूज नहीं करते, हम उसका रफ यूज करते हैं, किसी को भी हर्ट कर देते हैं बोल के, जैसे टीचर आपके साथ करते हैं, है ना. फिर मम्मी आपके साथ करती है, डैडी आपके साथ करते हैं, कोई भी आपको बोल देता है ऐसे ही, तो आप हर्ट हो जाते हो. तो तब क्या हुआ कि सामने वाले ने ऐसे वर्ड्स यूज किए जो कि आपको अच्छे नहीं लगे. लेकिन दूसरी बात बता दूं कि अगर वो सामने वाला हमारे लिए कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, हमारे प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, हमारे प्रोग्रेस के लिए बोल रहा है, देन दैट थिंग इज नॉट रॉन्ग. हाँ, बहुत अच्छी है. हाँ, बराबर है ना. तो टीचर्स, पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं वो आपके प्रोग्रेस के लिए बोल रहे हैं. तो दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. चलो, तो चैप्टर 10 उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन. और ये चैप्टर जो है उसमें हम पढ़े हैं पेरीमीटर, देन एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स. ओके, सो रोल नंबर क्या आया? 31. 21 तो हो गया ना. 31. Perimeter is a distance curve along the boundary, forming a closed figure when you go around the figure once. Okay, perimeter. What is perimeter? So perimeter is a length of the side of closed figure, which we had learned. Okay, but perimeter में हम क्या पढ़े? We have learned different shapes this year, which is rectangle, then square, then triangle, then we have done. We are learning just now polygon. हम अभी polygon ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि perimeter किसका मेजर किया जाता है? closed figure का. और वो भी polygon ही we learn. This chapter we had learned about the perimeter of polygons only. अभी सर्कल आपको नहीं आया. तो स्वास्तिक एक में का वो भी पॉलीगॉन है. और तो क्यों पॉलीगॉन नहीं है? क्लोज फिगर ही है ना वो, और लाइन सेगमेंट से बना है. पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? A figure made up of line segments. क्लोज फिगर मेड अप ऑफ, तो वो क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बनी है, तो वो पॉलीगॉन है. ये 2 कंडीशंस आर देयर. अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो पॉलीगॉन, अगर नहीं होती है तो वो पॉलीगॉन नहीं है. तो ये हो गया पेंटागन, फिर हो गया हेक्सागन, ठीक है. तो इस तरह के फिगर्स हम पढ़े हैं. और all these are polygons because all these are closed figures and made up of lines. So if these figures are irregular, irregular figure means what? And regular means what? कौन से पॉलीगॉन को इरेगुलर कहते हैं? जो फिगर खुली होती है, मतलब लाइन सेगमेंट्स से. नहीं, तो पॉलीगॉन ही नहीं है. नहीं. Those figures, those sides are not equal. Yes, the figures or the polygon whose sides are not equal. If all sides have different measures, then those polygons are known as irregular polygons. And if the measure of sides are equal, then it is regular. Okay? So if the figure is irregular, then what to do? ये फिगर irregular है, बराबर. रेक्टेंगल कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ऑल साइड्स इक्वल नहीं है. ऑल साइड्स इक्वल
पॉसिबल ये, और पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सभी में पॉसिबल है, लेकिन रेक्टेंगल में रेक्टेंगल हमेशा इरेगुलर ही होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे हम? वो फॉर्मूला हो गया बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस, पर अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना है एडिशन, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। तो इरेगुलर पॉलीगॉन कोई भी हो उसकी मेथड यही रहेगी कि जस्ट ऐड द लेंथ ऑफ द साइड, देन यू गेट द पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। But the perimeter of regular polygon, what is the formula to find out? क्या multiply? Number of sides. किससे multiply करें? Number of sides. ये कितनी बार पूछा है मैंने क्लास? ये शायद 10-15 बार तो मिनिमम हो गया, फिर भी सब मेरे फेस देखते रहते हैं। नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। सी रेगुलर फिगर मींस क्या? एक ही साइड का मेजरमेंट हमें मिले तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 4 सेंटीमीटर ऐसा मिल जाए तो स्क्वायर हैज हाउ मेनी साइड्स? 4 sides और all 4 sides are equal, ठीक है। तो स्क्वायर हमेशा रेगुलर ही होता है, वो कभी भी इरेगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ 4 क्या लिखा मैंने? साइड लिखा कि मेजर लिखा? साइड लिखा, ये लेंथ लिखा, तो मेजर तो अभी बाकी है कि नहीं? तो 4 तो स्क्वायर है 4 साइड्स, तो ये नंबर ऑफ साइड्स हो गई, और अभी उसका लेंथ क्या है? 4, तो वो क्या हो गया? चल, वैसे पेंटागन हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो, हेक्सागन हो तो 6 से, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो आप कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई। What will be the unit of perimeter? यूनिट क्या आएगा पेरीमीटर का? आपने करवाया था स्टार्टिंग में। पेरीमीटर का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दी गई है तो पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर आएगा, और मीटर में अगर वैल्यू दी गई है तो पेरीमीटर का यूनिट मीटर आएगा, बराबर है? बराबर। ये पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर को इरेगुलर बना सके। कैसे बनाओगे? स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? तो इरेगुलर कैसे बनाओगे? इरेगुलर बनाओगे तो कोई और टाइप का पॉलीगॉन हो जाएगा, बस स्क्वायर नहीं होगा, बराबर है? चलो नेक्स्ट, नंबर 12। है 2 लेंथ ब्रेथ ऐसा थोड़ी आएगा, या 2 इन ब्रैकेट ऐसा बोलो, या तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या बात है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट है यहाँ पे, दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं, पर वहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ऑलवेज वी हैव टू रिजॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, है ना? तो ये ब्रैकेट फर्स्ट रिजॉल्व करना है। जब भी आपको कुछ ऐसा मेजरमेंट मिले कि रेक्टेंगल का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, तो आप ये फॉर्मूला तो लिख दोगे, लेकिन आपको पहले ये रिजॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट।
सो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 15 सेंटीमीटर और वो हो गया 30 सेंटीमीटर. So always whenever there is a multiplication between bracket, so first of all we people have to resolve bracket. Resolve bracket means what? Inside of the bracket जो भी ऑपरेशन हो उसे पहले अप्लाई करना है, उसको सॉल्व पहले करना है, फिर जो उसका आंसर आए उसे आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो भी नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना. ठीक है, क्लियर हो? नेक्स्ट whose turn is that? 22. Perimeter of a square equal to 4 into length of each side. तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे अभी हमने कर लिया. चलो नेक्स्ट 32 रोल नंबर. हु इज दैट? नहीं है तो 23 नंबर 13 नंबर 1 3 13. Perimeter of an equilateral triangle 3 multiplied length of a side. Okay, that also I have explained you. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द साइड. चलो नेक्स्ट. या ही इज रीडिंग. तो 23 रोल नंबर कौन है? चलो. Figure in which all sides and angles are equal are called regular क्लोज फिगर. एंगल की बात हमने नहीं की थी, हमने छोड़ दिया, बराबर है. लेकिन अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी जैसे हमको स्क्वायर में देखो ऑल साइड्स आर इक्वल तो एंगल क्या आते हैं? 90. सेम आते हैं ना ऑल 4 एंगल्स आर सेम. ठीक है, तो रेगुलर फिगर की ये डेफिनेशन हो गई. चलो नेक्स्ट 33 रोल नंबर. नथिंग. चलो देन 14 रोल नंबर. The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. Now we are moving with area. करो अभी और भी धमाल करो. चलो तो अभी पेरीमीटर की बात ओवर हो गई. क्लियर हो सब? चलो नाउ एरिया. एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? चुप हो गए सब, साइलेंट. आपको साइलेंट करना हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? बस ये 4 स्टूडेंट पढ़ रहे क्या क्लास में? बोलो. बाहर का पार्ट नहीं. Perimeter means what? It is the length of the boundary. And area means the portion covered by the closed figure. That is given over area. कहाँ पे है ये? पेज नंबर 220 पे 4. The amount of surface enclosed by closed figure is called its area. तो अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ तो ये जो पूरा इनर पार्ट है ये वाला ये अमाउंट ऑफ सरफेस है एनक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगल. पेरीमीटर नहीं भाई, रेक्टेंगल. एरिया ये पूरा पार्ट उसे एरिया बोलते हैं रेक्टेंगल का. बराबर है. मानी एरिया मीन्स द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर. दैट ऑल्सो यू कैन सी दैट. ओके, कोई भी क्लोज फिगर से जितनी भी सरफेस कवर होती है उसे उसका एरिया बोला जाता है. चलो नेक्स्ट. फॉलोइंग कन्वेंशन आर एडॉप्टेड. अगर आपको स्क्वायर से कुछ एरिया बारे में समझना है तो ये उसका पॉइंट्स है. क्या है? चलो नेक्स्ट कौन है? रीड करो. ओके देन नेक्स्ट. कोई भी हो, चलो पढ़ो. He is in
a region, count it as 1 square. माने ग्राफ पेपर जैसे स्क्वायर यूज करके हमने एरिया इरेगुलर फिगर का ढूंढा ना, आपको याद हो तो जैसे इस तरह से लीव होती है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे ढूंढते हैं हम? तो ये एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या दिया गया था? स्क्वायर दिए गए, और स्क्वायर्स के अंदर हाउ मेनी स्क्वायर इट हैज ऑक्यूपाइड, अकॉर्डिंग टू दैट वी फाउंड आउट इट्स एरिया, ठीक है। और वो स्क्वायर में क्या था कि अगर फुल है, फुल पोर्शन है या हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है तो उसे फुल कंसीडर करो, एग्जैक्ट हाफ है तो हाफ कंसीडर करो, हाफ से कम है तो इग्नोर करो, ठीक है। और देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट, कि हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट एरिया दिस फिगर हैज कवर्ड, ओके। चलो देन next, whose turn is there? Let him read. That I have explained, okay? If it is half, then 1/2 unit. If more than half, then 1 unit. And less than half, then nothing, no unit. Next. 17. Roll number 17 कौन हो? Speak loudly. Sit down first. Okay. ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एरिया ढूंढने के लिए जो साइड्स के मेजरमेंट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज 28. Okay. See, basically logic is same for both. लॉजिक सेम है दोनों के लिए, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। बट इन रेक्टेंगल आपकी बुक बंद हो गई तो पूरी रिसेस ले लेंगे। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन देयर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बट स्क्वायर में साइड सेम होती है, दैट्स व्हाई साइड मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया में नहीं जाए और एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर में नहीं जाए, वो आपको केयर लेनी है। आज का होमवर्क चैप्टर नंबर 10 के एग्जाम्पल नंबर 1 to 9 आपको टेक्स्ट बुक में से सॉल्यूशन देखे बिना खुद करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 to 9 ऑफ चैप्टर नंबर 10।